Hello students, good morning. Now today we are going to start chapter 10 Spheres of the Earth. So open your textbook on page number 59. Our Earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. तो हमारी पृथ्वी जो सोलर फैमिली में है वो यूनिक है, अद्वितीय है, उसके जैसा और कोई नहीं है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिससे फेवरेबल अनुकूल टेम्परेचर, तापमान, पानी, वाटर और जीवन मिला है, जो पृथ्वी पे बहुत मूल्य उपहार है, वैल्यूएबल गिफ्ट, मूल्य उपहार है। और अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है दूसरे ग्रहों पर पर्याप्त मात्रा में जहाँ पे पानी और ऑक्सीजन मिला हो। Ordinarily, we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. As the fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively, like liquid and solid. In this way, the air gas around the earth surface came into existence. Huge ditches on this sphere were filled with water and turned into oceans. Thus, the exact form of earth was created. आम तौर पर हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय एक आग का गोला था। आग के गोले के रूप में ये धीरे धीरे ठंडा हुआ और बाद में सॉलिड और लिक्विड जैसे कई मामलों में बदल गया। इसी तरह पृथ्वी की सतह, सरफेस के आसपास वायु, गैस अस्तित्व में आए। फिर धीरे धीरे इस गोले पर भरीखम खाइयाँ बनी, ह्यूज डिचेस, भरीखम खाइयाँ बनी, डिचेस खाई, जो कि पानी से भरी हुई थी और फिर महासागरों, ओशंस में बदल गई। इस तरह हमारी पृथ्वी का सही रूप में निर्माण हुआ। Spheres of the Earth. There are four main spheres of the Earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Lithosphere. Upper area of the Earth surface is generally made up of soil and solid matters. Litho means soil, that is why upper layer of the Earth is known as lithosphere. As this layer is also made up of rocks and solid matters, it is known as the rock sphere or the solid sphere. तो पृथ्वी की सतह की ऊपरी लेयर आमतौर पर मिट्टी और ठोस पदार्थ, सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है। लिथो का अर्थ है मिट्टी, जिसके कारण पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर को लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इस लेयर के रूप में रॉक्स और ठोस सॉलिड मामलों से भी बने हैं, सो इसे रॉक स्फीयर या तो फिर सॉलिड स्फीयर के रूप में भी जाना जाता है। एरिया एंड फॉर्मेशन. Upper layer of the earth crust is approximately 64 to 100 km thick. Light matters like aluminum and silica are mainly found in that. This layer is thin in the deep sea. Lithosphere occupies about 29% of the earth's surface. Mountains, plateaus and plains, etc. are there on this part of land. As we go into the deep of lithosphere, the temperature increases gradually. पृथ्वी की जो लेयर है वो लगभग 64 से 100 किलोमीटर मोटी है। एल्यूमिनियम और सिलिका जैसे हल्के पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं और ये लेयर गहरे समुद्र से पतली है। लिथोस्फीयर पृथ्वी की सतह का 29% भाग घिरता है, जैसे पर्वत, माउंटेन्स, प्लेटोज, पठार और प्लेन्स यानी मैदान। भूमि के इस भाग पर जैसे जैसे हम लिथोस्फीयर की गहराई में जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। On moving towards the depth, generally per kilometer, 30 degrees Celsius temperature increases. Internal rocks are melted due to the intensive heat
and turn into semi-liquid form. This molten liquid is called magma. It consists of various gases. Here, high pressure of the upper rocks is observed. तो गहराई की ओर बढ़ते पर आमतौर पर प्रति किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। अंदर की जो रॉक्स है वो अधिक गर्मी के कारण पिघल जाते हैं और ये सेमी लिक्विड रूप में बदल जाता है। तो इस सेमी लिक्विड को हम मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा बहुत अलग अलग गैसों से बने होते हैं और इसी कारण यहाँ जो ऊपरी चट्टानों है उस पर हाई प्रेशर दिखा जाता है। Thus, balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat, and that is why earth crust does not burst. तो इस प्रकार दबाव और गर्मी, प्रेशर और हीट जैसी दो विपरीत शक्तियाँ, ऑपोजिट फोर्सेस के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है, बैलेंस इज मेंटेन। और इसी कारणवश पृथ्वी का जो लेयर है वो फटता नहीं है। लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। आवर होम, water farming, industry and all are closely associated with lithosphere. Minerals and crude oil is obtained from lithosphere. Various crops are obtained through farming. Various industries and other economic activities are performed in the plain regions. Forest on the mountainous region is indebted to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere. तो लिथोस्फीयर का बायोस्फीयर यानी कि जलमंडल कहते हैं और वेजिटेशन वनस्पति के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशन। हमारे घर, पानी, खेती, उद्योग ये सभी के सभी बहुत बारीकी से लिथोस्फीयर के साथ जुड़े हुए हैं। खनिज और कच्चे तेलों को लिथोस्फीयर से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न फसलों को खेती के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में विविध उद्योगों, इंडस्ट्रीज़ और अन्य आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर, माउंटेनस रीजन पे वन जो है वो लिथोस्फीयर का ऋणी है। तो फॉरेस्ट जो है वो उसका लिथोस्फीयर का ऋणी है, उसी के कारण फॉरेस्ट होते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि भोजन से लेके हमारे अस्तित्व के आधार के लिए लिथोस्फीयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। The proportion of water area is more on the earth than the land. Area of the earth's surface occupied by water is known as hydrosphere. Approximately 71% of the total earth's surface is covered with water. This area of the earth's surface is so vast that continents appear as if islands. Part of the earth having huge water mass are known as oceans. तो हाइड्रोस्फीयर तो भूमि क्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पे जल का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। सो लैंड एरिया से वाटर एरिया बहुत ज़्यादा है। जो क्षेत्र पानी द्वारा पृथ्वी की सतह को घिरे हुए हैं उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। लगभग पृथ्वी का सरफेस 71% पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी की सतह का एक क्षेत्र इतना बड़ा है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं। पृथ्वी की इस विशाल जल द्रव्यमान वाले भाग को महासागरों के रूप से जाना जाता है। तो ये ह्यूज वाटर मास है, विशाल जल, तो उसको हम ओशंस के नाम से जानते हैं। दे आर रिस्पेक्टिवली, नाउ टर्न योर पेज,
well known as the Pacific, the Atlantic, the Indian, and the Arctic Ocean. Oceans on the earth are very deep and huge. 10 to 11 kilometer deep valleys are there in their bottom. Various landforms like earth surface are there in the bottom of these oceans. 97% of the total earth's water is found in the oceans and it is saline water. तो ये 4 महासागर ओशंस जो है वो प्रसिद्ध है, वो है पैसिफिक पर ओशंस बहुत गहरे और विशाल है, में 10 से 11 किलोमीटर की वैलीज है और इसी तरह पृथ्वी की सतह लैंडफॉर्म इन महासागरों के तलों में पृथ्वी के पाया जाता है और ये पानी ओशंस में पाया जाता है जो कि खारा है, सलाइन सॉल्टी है. Remaining water, approximately 2/3 part, is in the form of ice sheets on the poles and on the other high mountains like Himalayas. The water which is lying under earth crust flows in the form of lake and river and is very less in proportion. बाकी का जो 2/3 हिस्सा है वो पोल्स पे और हिमालय जैसे अन्य ऊंचे पर्वतों पर बर्फ़ की चादरों के रूप में है. वो जल जो पृथ्वी के नीचे पहाड़े हैं वो लेक और नदियों के रूप में बहते हैं और हिस्सा है वो बहुत कम है. And plants on the earth cannot survive without water. It is advisable through food or through moisture from the air. There lies a large amount of precious minerals. तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव और पौधे बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते. ये भोजन से, हवा से, नमी के माध्यम से उन्हें पानी मिलता है. जो जलमंडल है दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर की मौजूदगी, जीवित मानवी की मौजूदगी है. तो इसका मतलब है कि पानी जो धरती पर है लिए जीने का स्रोत है. पृथ्वी नमी यानी मॉइस्चर का ज़्यादातर भाग समुद्र के तल में बड़ी मात्रा खनिज पाए जाते हैं. Salt is up and its bottom contains minerals like manganese, iron, tin, etc. Ocean is also a stock of protein-rich food for humans. There is enormous power in the sea and ocean waves, currents and tides of the oceans. By its management, usage, electrical energy can be obtained. The oceans have developed as waterways. Waterways are also more favorable in the trade of different countries. तो नमक भी वहीं से पाया जाता है और उसके बॉटम में मैंगनीज, लोहा, टीन आदि खनिज प्राप्त होते हैं. महासागर भी मनुष्य के लिए प्रोटीन युक्त भोजन का भंडार है. समुद्र और समुद्र की जो लहरें, वेव्स, धाराओं, करंट्स, महासागरों की ज्वार से भी शक्ति होती है. इसके उपयोग के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें मिलती है. ये ओशंस पानी के रूप में विकसित हुए हैं और अलग अलग देशों के व्यापार के लिए भी पानी के तरीके भी ज़्यादा अनुकूल है. So students, now rest of the chapter will continue in the next video.